Yes, ma'am. Good morning, everyone. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 5, arithmetic progression. Right? In this chapter, we will study about various sequences, various numbers which are given in a series. Arithmetic progression means the numbers which are at equal distance, right? The numbers you are given when they are at equal distance, then the group of numbers we get is called arithmetic progression. How? We are saying that we are writing the numbers 1, 2, 3, 4, 5. Here, what is the gap between the numbers? What is the gap between the numbers? It is a 1 gap, right? So this will be our arithmetic progression when there is equal gap between the numbers, right? If I write the numbers 2, 4, 6, 8, 10, 12, so on. Here, each consecutive number, each next number is at a gap of 2 from the previous number, right? So this will also be an arithmetic progression, right? If I write the number 101, 106, 111, 116, 121, dash, dash, dash. What is the gap between the numbers? What is the gap between the numbers? Hurry up, let me know. 5 There is a gap of 5, 106 minus 1. Yes, 106 minus 101, 5. यहाँ भी 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है. When you have equal gap which carry on up to the end, till end, right? In that case, this progression will be called arithmetic progression, right? This sequence of numbers is called arithmetic progression. Clear? अब इसमें जो आपकी कॉमन टर्म्स होती हैं जिसको हम यूज करेंगे, ये वाला चैप्टर बेटा आपका जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, वहां पे बहुत हेल्पफुल होता है. जब आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दोगे, रीजनिंग में ये चैप्टर आ जाता है, राइट? इसको धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे करते जाएंगे. यू विल लर्न हाउ टू यूज दिस चैप्टर. ये जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है इसको हम लिखते हैं ए से, राइट? दिस इज कॉल्ड ए, या तो ए या फिर A1. दिस इज द सेकेंड टर्म, सो दिस इज कॉल्ड A2. कॉमन सिर्फ इसका है, मेन नेम ए इसी का है, ठीक है? उसके बाद आपके जनरल है, ये 1, 2 आपके नीचे आएंगे, ए से नीचे लिखा जाएगा सेकेंड टर्म, राइट? A2 मीन्स सेकेंड टर्म. दिस विल बी कॉल्ड A3, this will be A4, this is the fifth term, means A5, right? Now we talk about the common difference. What is the common difference in this question? A. 1. कितने कितने का डिफरेंस है? 1 1 का डिफरेंस है. 1. तो कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं डी से, ठीक है? स्मॉल डी. दिस इन दिस क्वेश्चन दिस डी इज 1. क्लियर? ठीक है, चलिए. अभी आपके जो सबसे पहले क्वेश्चंस हैं वो ये है कि आपने बताना है कि आपको जो गिवन प्रोग्रेशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी या नहीं होगी, राइट? यू आर गिवन द स्टेटमेंट्स. जहां पर भी आपका गैप इक्वल बढ़ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल वी डिड अ क्वेश्चन लास्ट ईयर ऑफ टैक्सी फेयर, कि आप टैक्सी से कहीं जा रहे हैं और उस सिटी के चार्जेस किस तरह से हैं, दैट फॉर फर्स्ट किलोमीटर यू हैव टू पे 8 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है? उसके बाद आपने किया था हर कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर के आपके 5 रुपीज हैं हर किलोमीटर के. उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर, मतलब जब आपके 2 किलोमीटर हो जाते हैं तो आपके कितने रुपीज हो जाएंगे? इसमें 5 रुपीज इंक्रीज हो गए, बिकॉज इसके बाद 5 रुपीज पर किलोमीटर आपके इंक्रीज होने हैं, राइट? सो यहाँ पर आपके 8 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर के, तो 2 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे? 8 + 5 13, राइट? और अगर आप 3 किलोमीटर तक जाते हैं तो आपका कितने चार्जेस हो जाएंगे? 13 + 5 कितने? 18, राइट? अब यहाँ पर जो आपके नंबर्स का सीक्वेंस बन रहा है 8 13 18 डैश डैश डैश,
Is it arithmetic progression? Is it arithmetic progression? Yes, ma'am. Yes, this is arithmetic progression with what is A in this question? 8. A is 8. And what is D? 5. 4 5 because we are adding 5 to each number. 5. ठीक है, आप 5 ऐड करके ही तो नेक्स्ट नंबर तक पहुंच रहे हो. दैट मीन्स जब आप माइनस करोगे तो भी आपके पास 5 आएगा, राइट? सो हियर कॉमन डिफरेंस इज 5 in this question, right? You look at your first question, first part. We have 5. to tell which of the following are arithmetic progressions. Your first is the taxi fare. After each kilometer, when the fare is rupees 15 for first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. आपने बताना है कि ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. Now they are saying for first kilometer rupees 15 for first kilometer and for each kilometer there are rupees 8. ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी या नहीं बनेगी? Let me know the progression. First term will be, what will be the first term? A. 15. For first kilometer we have rupees 15. What will be the second term? For second kilometer, how much money we will have to pay? 8. No, not 8. 8 rupees 23. extra. 15 तो है, 23. उसके ऊपर 8 और 23. 23. And next for 3 31. kilometers 31. आप क्या ऐड करते जा रहे हो? हर नंबर में आप 8 ऐड करते जा रहे हो. दैट मीन्स आपको पता है कि आप एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हो. यस, यू नो दैट यू आर एडिंग अ फिक्स नंबर. तो ये हमारी, जब आप फिक्स नंबर ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स दिस इज योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? नाउ come on the next question. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. एक सिलेंडर है जिसके अंदर एयर है, और जैसे ही आप पंप करते हो, उसको पंप करते हो, तो उसके अंदर से 1/4 एयर आप बाहर निकाल देते हो. रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर. जितनी उसके अंदर एयर है उसका 1/4 बाहर निकल जाता है. We have to tell whether this is the example of arithmetic progression or not. ठीक है, इसमें हम assume करते हैं, suppose उसके अंदर जो एयर है that is 1000. ठीक है, मैंने एक बार पंप किया, पंप करते ही इसमें से कितनी एयर बाहर आ गई? कितनी एयर बाहर आ जाएगी? 1/4. 1/4. और 1000 का 1/4 कितना हो गया? चलो 100 ले लो आप, for your convenience. You may 25. Ma'am, 25. according to 1000. So this Ma'am, will be 250. 250. 1000 आपकी पहले थी, 1000 में से 250 निकल गई. What is left? What is the amount of air left? 750. 750 is the amount of air left, right? अब उसके बाद मैंने एक और बार पंप कर दिया, अब कितनी बाहर निकल गई? 1/4 of the remaining air in the 500. हाँ जी, 500. 1/4 of 750 बाहर. नो, नॉट 500. अब जो एयर है वो इतनी है, इसका 1/4. ठीक है, इसका 1/4 आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 187.5 बाहर निकल गई. कितनी रह गई? 750 आपकी थी, और इसमें से 187.5 आपकी बाहर निकल गई. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट? ठीक है, नाउ योर अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इज 562.5. और इसके आगे हम नहीं कर रहे, हमारा 3 टर्म से ही हमें पता लग जाएगा वेदर दिस इज एपी और नॉट. अब यहाँ पे गैप देखो, यहाँ पे आपका गैप कितने का आया है? 250 का. ठीक है, और यहाँ पे आपने जो गैप निकाला वो कितने का आया था आपका? 187.5. Yes, राइट? ma'am. यहाँ पर आपका गैप 187.5 का है, यहाँ पर आपका गैप 250 का है. नाउ गैप इज नॉट सेम. इफ गैप इज नॉट सेम मींस दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक progression. Arithmetic progression.
राइट? क्लियर हुआ? Yes, Shall we ma'am. proceed Yes, to the ma'am. next part? जहां जहां पर भी आपका Yes, कॉमन डिफरेंस, ma'am. जहां पर भी बेटा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा वहां हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी. Cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for first meter and rises by rupees 50 for each subsequent kilometer. आपने कहीं पे जमीन खुदवानी है, डिगिंग करवानी है, एंड फॉर फर्स्ट किलोमीटर आपको 150 रुपीज पे करने पड़ते हैं. अगर आप 1 किलोमीटर का गहरा खुदवाते हो तो आपको 150 रुपीज पे करने हैं, एंड फॉर ईच सब्सिक्वेंट किलोमीटर यू हैव टू पे रुपीज 50. उसके बाद हर किलोमीटर के आपको 50 रुपीज देने, राइट? सो फर्स्ट किलोमीटर के 150. अगर मैं 2 किलोमीटर तक खुदवाती हूँ, डिगिंग करवाती हूँ, हाउ मच अमाउंट विल आई हैव टू पे? 200. 200. और अगर 3 किलोमीटर तक जाते हैं तो 250. 250. व्हाट इज द गैप? 50. 50 gap means this is an Arithmetic. progression. Arithmetic Automatic progression. Yes, very good, very good. Now the next one is the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% annum. बेटा ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा तो वो तो आपका एपी में आएगा, बट जब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो वो एपी में नहीं आता, राइट? सिंपल एपी में होता है बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका हर साल एक फिक्स अमाउंट है जो इंक्रीज होता है, राइट? पीयूष, एनी प्रॉब्लम? चलिए, नो मैम. 10,000 रुपीज आपने डिपॉजिट कराए, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो. कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम. आपने इस पे 8% पर एनम, क्या क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? पहले आपको उसमें अमाउंट निकालना पड़ता है, फिर अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके. तो ये क्वेश्चन अगर आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो इट विल बी अ कंफ्यूजन फॉर यू. इसमें सिर्फ ये देख लो कि 8% आपने इसका हर साल इंक्रीज करना है. पहले साल में आपने इसको कैंसिल किया एंड नाउ यू आर गेटिंग 800 रुपीज, ठीक है? आपको पहले साल का जो इंटरेस्ट मिला दैट इज रुपीज 800. फॉर फर्स्ट ईयर यू आर गेटिंग 800 एंड 800 का तो इंटरेस्ट मिला, दैट मींस आपका बैंक में अमाउंट कितना हो गया? 10,000 पहले था और 800 उस पर इंटरेस्ट मिल गया. नाउ योर अमाउंट इन द बैंक इज 10,800, राइट? अब उसके नेक्स्ट ईयर के लिए जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इसी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल जितना आप अमाउंट पे कर रहे हो उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगता जाता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जो आपका नया अमाउंट आएगा उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लग जाएगा. दैट मीन्स 10800 का फिर से आपको 8% निकालना पड़ेगा एंड यू विल गेट 864. आपके पास पहले इतने पैसे थे 10800, उसके बाद आपके 864 इंक्रीज हो गए एंड नाउ द अमाउंट, योर अमाउंट इन द बैंक इज 11,664. 11,664. और आपने शुरू कहां से किया था? 10,000 से. अब ये देख लो कि आपका गैप सेम आया है या नहीं. यहाँ पर गैप कितने का है? 800 का, बट हेयर द गैप इज 864, राइट? सो गैप इज नॉट सेम, मींस दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये आपको एग्जाम में अगर आता है तो आपको इसको फाइंड आउट नहीं करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाना है आपने. ये सिर्फ ये याद रखना है अगर सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे तो हो जाएगा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, राइट? 1 मार्क में ये क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा. क्लियर? Now let we come to the next question. Write first 4 terms of the AP when the first term A and common difference D are as follows. We have to find out the first 4 terms. आपके पास एक AP है जो आपने find out करनी है, उसकी पहली 4 terms लिखनी है and you are given A is equal to 10. What is A? A क्या बताया था आपको? What was it? First term. D is कॉमन डिफरेंस, ठीक है? तो
तो अब मुझे 4 टर्म्स बता दो इस एपी की। पहली टर्म क्या होगी? 10 फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 20 20, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 30, ऐड कर दिया 30 30, and 30, 40, 40 ठीक है। Similarly, come to the next question. Now your first term is -2 and common difference is 0. What is the now AP बोलिए? मैम माइनस -2 -2, minus 2 -2 फिर से -2 + 0 -2, -2. ठीक है। तो ये आपकी AP बन गई। AP हो गई विद कॉमन डिफरेंस 0। क्लियर? तो ये these are the 4 terms of the AP. अब एक लास्ट पार्ट इसका और कर लेते हैं, बाकी थर्ड एंड फोर्थ पार्ट you will do yourself. Now I am given the first term -1.25, -1.25 and the common difference is -0.25. ठीक है, अब बताओ फर्स्ट टर्म क्या हो गई? -1.25, -1.25। सेकेंड टर्म कैसे निकालूं? मैम First- इसमें मैम, 0.25 ऐड कर दो। यस, -1.25 1.50, प्लस करते हैं 1.50. ओके 1.5 1.50 और 1.5 one are the both are the same Ma'am. thing, but it will not be 1.5, it will be minus 1.50 minus 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 1. minus Okay. 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25 माइनस माइनस आपने प्लस करना है, बट साइन आपका बड़े नंबर वाला लगता है, बड़े नंबर ये, और इसका साइन हुआ नेगेटिव। इन दोनों को आपने प्लस किया 1.25 1.25 0 गेट 1.5 0 1.50 लास्ट वाली 0 आप लिखो या ना लिखो उससे कोई डिफरेंस नहीं आता, राइट? तो ये तो आ गई हमारे पास सेकंड टर्म। अब चलते हैं थर्ड टर्म की तरफ, बिकॉज वी हैव टू राइट फोर टर्म्स -1.75, वेरी -1.75. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। इट विल बी -1.5 माइनस 0.25, आपने दोनों को ऐड कर दिया, यू विल गेट -1.75 एंड द फोर्थ टर्म विल बी मैम 2 -2.0 -2 या -2.0। क्लियर? 2.0 यस, -2.0 या फिर -2, क्योंकि डेसिमल के बाद जो लास्ट में जीरोस आते हैं, it is not mandatory to write those zeros. Clear? So this Okay, was the ma'am. second question. Now the third one is, for the following APs write the first term and the common difference. You just have to write A and D. You are given APs here. Your question is 3 1 -1 -3. What is A? 3 What is A? A is 3 and what is D? D -1 Ma'am 3 1 1 1 -2 1, how 1? -2। Ma'am, -2 में से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, राइट? तो आपकी सेकेंड टर्म है 1, इसमें से आपने माइनस करना है 3, सो यू विल गेट -2, राइट? सो योर आंसर इज A is equal to 3 and D is -2, राइट? बेटा यहाँ पर ना जो आपकी एपी होती है वो दो तरह की होती है, वन इज इंक्रीजिंग एपी, वन इज डिक्रीजिंग एपी। ठीक है, जिसमें वैल्यूज इंक्रीज हो रही होती हैं दैट इज इंक्रीजिंग एपी, और जिसमें वैल्यूज आपकी डिक्रीज हो रही होती हैं वो डिक्रीजिंग एपी। ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? मैम डिक्रीजिंग ठीक है, डिक्रीजिंग Yes. एपी, और डिक्रीजिंग एपी में हमेशा डी नेगेटिव आता है, इंक्रीजिंग एपी में हमेशा डी पॉजिटिव आता है। क्लियर? ओके चलिए एक और लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग वन मोर पार्ट ऑफ दिस positive थर्ड पार्ट, 1/3 5/3 9/3 13/3, what is A and what is D? हरिया मैम A 1/3. मैम A 1/3 है गुड, एंड D -4/3 मैम -4/3 मैम 4/3. -4/3. माइनस कहाँ से आ गया?
मैम 4/3 only. इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग है तो आपका 4/3, इसमें से इसे माइनस करेंगे, सो 5/3 minus 1/3 means 4/3, राइट? तो डी पॉजिटिव है, दैट मीन्स दिस इज आवर इंक्रीजिंग एपी, ठीक है? चलिए एक और डेसिमल वाला भी करते हैं, 0.6, 1.7, 2.8. What is A and what is D? A is 0.6 and D is 0.6 1.1. 1.1. yes, 1.7 minus 0.6 means D is 1.1, ठीक है? यहाँ पे जब आप आंसर देते हो ना तो मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, सो प्लीज कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग, राइट? नेक्स्ट वन, which of the following are APs? Now you are given the numbers, सीरीज आपको गिवन है, आपने बताना है कि वो AP है या नहीं है, ठीक है? You have to check. Question is 2, 4, 8, 16. No, ma'am. नहीं है? No, ma'am. नहीं है, No. because 4 minus 2 is 2, 8 minus 4 is 2, 4, ठीक है? 4. ये दोनों आपके सेम नहीं आए हैं, so not an AP, ठीक है? अगला 2, 5/2, 3, 7/2, Ma'am, yes. है ये? Yes, माइनस करते हैं, ma'am. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, 5/2 minus 2, you will get 3/2. 3/2, not 3/2. Take LCM first of all. 1/2. Ma'am, 5 2. minus 4, that is Ma'am, 1/2. yes, 1/2. ये पहला गैप 1/2 है. Let me check the others also because we don't know whether this is AP or not. We have to check. Ma'am, Next second भी one. 1/2 है. 1/2. 6 minus 5, 1/2, and then 7/2 minus 3. This is also 1/2 because all the differences are coming same. So you will say yes, this is an AP. AP. ठीक है, चलो अब और क्वेश्चन भी आते हैं इसी का फर्दर. -1.2, -3.2, -5.2. Let me know whether this is AP or not. Yes, ma'am. है? Yes, ma'am. What is the common difference? Ma'am, -2. ठीक है, -2, -3.2, -1.2. The common difference will be 2. इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर भी 2, Yes. यहाँ से माइनस करेंगे, this is also coming out to be 2. So this is an 2. AP. AP. Now question is 3 plus √2, 3 plus 2, and 3 plus 3√2. Check whether this is AP or not. Yes, ma'am. क्यों? Yes, ma'am. क्यों? Ma'am, क्यों है क्योंकि AP? D is equals to √2. Because D is equal to 3 √2. plus √2 minus 3 is equals to 2. √2. Yes, yes. आप इसमें से 3 plus √2 में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, ये कैंसिल, आपके पास आ गया √2. अब इसमें से माइनस करते हैं 3 plus 2 √2 -3 minus √2, क्योंकि माइनस करना है तो दोनों साइन चेंज कर दिया आपने. 3 and 3 कैंसल, 2 √2 में से 1 √2 कैंसिल हुआ तो आपका आंसर बचा ओनली √2, राइट? सिमिलरली √2. 3 plus 3 √2 में से आप माइनस करेंगे 3 minus 2 √2, ठीक है? -3 minus 2 √2, 3 से 3 कैंसिल, 3 √2 minus 2 √2 is again √2, राइट? तो √2. ये यहाँ आपके सारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP, राइट? वन मोर पार्ट, 0.2, 0.22, 0.222. No, ma'am.
चलो सिर्फ इतने से ही हो जाएगा। आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो मैम व्हाट द आंसर 10 विल कम? 0.10 0.10 तो नहीं आएगा। 0.22 0.02. यस 0.20 0.02। बेटा जब भी माइनस 0.02 करते हैं डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, इधर वाली टर्म्स इधर, उधर वाली टर्म्स उधर। डोंट फॉरगेट कि जब आप माइनस करते हो तो सॉरी डेसिमल के मैम नीचे डेसिमल। इसमें से इसको माइनस कीजिए, 0.222 माइनस 0.22, व्हाट द आंसर इज कमिंग? 0.002 0.002 are they same? 0.02 and 0.002 No, they ma'am. are not same, so not an AP. not Right? AP. This is not an AP. अच्छा एक और कर दो। Yes, ma'am. √3, √6, √9, √12 is this an AP? No मैम। मैंने कहा, मैंने बता रखा मैम मेरी सारी कंप्लीट है। No, ma'am. This is not an AP. आप माइनस करेंगे, √6 में से √3 माइनस करोगे, √6 माइनस √3 नहीं होता। ठीक है, आप इसको ये वाली आप माइनस नहीं कर सकते, ये आप तभी माइनस कर सकते हो अगर ये भी √3 वाली होती और ये भी √3 वाली होती, बाहर चाहे कुछ भी हो तो माइनस कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, राइट। सिमिलरली ये आपका एज इट इज रहेगा। √9 माइनस √6 अगर आप लिखेंगे देन यू कैन राइट √9 एज 3 बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इससे ये कैंसिल किया, √6 आपका एज इट इज, सो दिस इज 3 माइनस √6। ये और ये सेम नहीं आए, सो दिस इज नॉट एन AP। Not AP. ठीक है, चलिए अब एक और बता दो, अगर आप इतना ही अच्छे से कर रहे हो तो। लेट मी नो वन मोर आंसर। √2, √8, √18 and under √32 is it an AP? Yes मैम। क्यों? This is √2, मैम D is √2. D equals to √2. इसको √8 को मैंने लिख दिया 2 into 2 into 2। ठीक है, √18 ma'am. को लिख दिया मैंने 3 into 3 into 2। ठीक है, 3 3s are 9, 2s are 18 and √32 can be written as 2 2 3 into 2 2 2 2। ठीक है, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32, राइट। अब इनमें से कॉमन 32. निकाल देते हैं, इनमें से जिनके पेयर्स बन गए उन्हें बाहर निकाल देते हैं। 2 का पेयर हो गया, सो 2 विल कम आउट, Yes, अंदर ma'am. रह गया √2। इसमें 3 का पेयर हो गया, pair. 3 इज आउट एंड √2 इज लेफ्ट। 3 इसमें √2. आपका एक ये पेयर बना और एक ये पेयर बना, तो दोनों 2 बाहर आ गए। ठीक है, दोनों 2 into बाहर आ गए, Yes, मींस ma'am. 2 2s are 4, 4 √2। 4 ठीक है, 4 आप √2. माइनस करते हैं, 2 √2 माइनस √2 √2. √2, 3 √2 माइनस 2 √2 √2. सिमिलरली 4 √2 माइनस 3 √2 इज ऑल्सो √2। तो ये आपकी क्या √2. बन गई? AP, राइट। सो दिस इज एन AP। Yes, ma'am. अच्छा, एक लास्ट और बता दो, इसी क्वेश्चन का ही एक और पार्ट कर रही हूँ। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, विल इट बी एन No AP? मैम। आप आंसर्स देख रहे हो या करके भी देख रहे हो? Ma'am, I have done this chapter. Okay, then let others speak। फिर तो उनको भी बोलने दो ना जिन्होंने नहीं किया, so that they can also understand। Yes, Okay. मैम नो। 1 square is 1, 3 square is 9, 5 square is 25 and 7 square is 49। माइनस कर लीजिए, 9 minus 1 is 8 and 25 minus 9 is 16, because common difference is not same, so this is not an AP, right? Chaliye, that's all for today. We have completed exercise 5.1 and you have to complete it in your notebooks.
right? Thank you and have a nice day.